Hello friends, welcome to my channel Prasad Joshi Astro Universe. Today we are going to talk about the Taurus Ascendant and the impact of different planets on the first house in the Taurus Ascendant. Now Taurus Ascendant is ruled by Venus, which is a planet that provides luxury, conveniences, comforts of all kinds. Therefore, Taurus Ascendant is one of the best ascendant in which one can be born. These people enjoy their lives much more compared to any other ascendant because the ascendant Lord Venus itself is the significator of enjoyment and luxury. You will see that people who are born in the Taurus ascendant will generally have a very pleasing personality and pleasing face. They will be very beautiful or handsome depending on the gender, and they are very amiable by temperament. Most of the people in Taurus ascendant are artistic in nature. Their character is questionable depending on the combination of the planets in the first house. Essentially, Taurus is a materialistic ascendant, so they behave are polar opposite of what the Pisces ascendant would stand for. Pisces ascendant is pure spirituality, and Taurus ascendant is highly materialistic. Therefore, you will also find these people to be very rich because their focus is purely on acquiring the material benefits in the life. They are very fond of luxury, they favor romance, but they also end up with bad company many times. And you will find such people to be very happy mostly in the middle and the later portions of the life. We are going to look at different planets in the first house, and first house, as we know, denotes our personality, our outlook towards life, and our direction in life in general. So we will first look at the presence of sun in the first house. In this horoscope, sun is in the 11th house, but when sun is present in the first house in the Taurus ascendant, it gives native a majestic personality, but it is also liable to provide individuals with some kind of an eye trouble, headaches. They also experience some kind of a marital difficulties. Such people are able to acquire a lot of property and wealth through their own effort, and depending on the placement of Venus and Mercury, they may also become a skilled musicians or good players of different string instruments. We will now come to Moon. When Moon is present in Taurus, it is a very good placement for Moon to be in because Moon is in an exalted position in Taurus in the first house. People with Moon in the first house in Taurus ascendant, they are usually very attracted towards the opposite sex, and they will keep on continue to woo them despite facing a lot of hardships, whether it's in relationship or in general. As far as striking communication is concerned, such people usually have a very big face, but they also suffer from the significators that are indicated by moon. So these people have a lot of cuff in their physical constitution, which also implies slowness, tranquility, and peace of mind. But this excessive cough, because of the presence of moon in the first house, makes them susceptible to cold, asthma, and other phlegmatic ailments. Mercury in the first house means that the owner of the second and fifth house sits in the first house. So it's a very good position for Mercury to be in. Such people are usually very rich because the lord of the second in the first house, that too a friend of ascendant, is a very good position. And presence of Mercury in this sign creates a very clever and skillful negotiator who may find success in acting as a mediator or even in the teaching profession. People with Mercury in the first house are usually not that great when it comes to physical strength, but they have a well proportioned body and they have the gift of gab. So they are very good speakers, and you will find them professions where public speaking is a part of their job. Such people look very youthful in the old age and are also blessed with a good wife and children. When Venus is in the first house, Venus is in its own sign and is exceptionally happy in this position. You will find people with Venus in the first house and Taurus ascendant to be very rich. They are frequently honored by powerful people, and they cultivate friendship with people in the higher stratas of the society. Such people are very talented, they are artists, and they are very affable in nature, which means that they are able to strike friendship with many people in the society and are able to earn money by using their intelligence and their personality.
These people are very, very attractive, and as a result, they have a very large social circle. When Mars is present in the first house, Mars and Venus are natural partners because eighth house is ruled by Venus, whether it's Taurus ascendant or Libra ascendant. So when Mars sits in the first house, it produces a very highly passionate individual, and you will find such people who are often under the influence of the opposite sex, or they act basis the advice given to them by the opposite gender. So something that is very interesting is that such people or individual are usually very loyal to their friends, but that cannot be said for their spouses. Since the seventh house lord sits in the first house, they find themselves to be tremendously attracted towards people from the other gender apart from their spouses. So that does create some kind of a problem in their marital life. These people dress well, they also live overseas, and they speak very harshly because Mars in the first house will obviously give them that kind of an aggressive nature. Jupiter, when it occupies Taurus in the first house, it gives a very sound body, wealth, and friends, but it also may render the native unethical, and they are prone to engage in the undesirable secret activities. And sometimes they also seek refuge in the alternate relationship outside of their home. So, this is not a very great position for Jupiter to be in because the ascendant lord is a great enemy of Jupiter, and therefore it has a great impact on the health of the individual. Jupiter in the first house itself will mean that it is going to create some kind of a damage to the body of the individual. Also, Jupiter rules the 8th and the 11th house in this case, and therefore lord of the 8th house sitting in the first house again is not considered to be a great position. When Saturn sits in the first house, it creates some sort of a problem for the native when it comes to the character and their relationship with the opposite sex. Saturn and Venus, when they combine together, it's a very dangerous combination because Saturn wants the person to be disciplined and Venus wants the person to let go. What really happens is that person, whenever if they are indulging in some kind of a bad activity, they take it to the extreme. And due to this reason, this is not a very good combination for the person, because if a person starts to drink, then they may drink themselves to the death. Or if they start to get into some kind of a relationship with the opposite gender, then you will see people with multiple relationships at the same time. So it's not a very great position for a person to be in when Saturn is in the first house. Such people are usually tall, bony, and they are dark in appearance, and they may also suffer from throat ailments. You will often see such people attaining a very respectable status in the life, but they often lose it. And you will see such people constantly drawn into sexual affairs, which kind of impacts their life, but it also is dependent on the aspect of Rahu or any other malefic planet on the first house apart from Saturn being in the first house itself. When Rahu sits in the first house in Taurus, it bestows luck in the native's job and achievement, and person uses every trick in the book to get the object of their desire. Such people are usually very crafty when it comes to dealing with different people, and as a result are able to achieve what they want because they do not hesitate in resorting to questionable practices in achieving their desired objective. So when Ketu is in the first house, it again cannot be considered a good position because Ketu is about letting go, does not give you the significators of the house where it sits in. First house is ruled by Venus, which wants to acquire and live a luxurious life. Therefore, this placement of Ketu comes in direct conflict with what Venus is aspiring. For this native becomes physically weak and mentally backward, and he or she feels restless all the time. Such people are although very skillful and they are very secretive in nature, and they may use unfair methods to increase their wealth and reputation. Ketu in the first house also makes an individual prone to a wound or injury on their body, especially on the parts that are related by the first house. So you will see an injury mark on their foreheads or on their face in one form or the other. So overall, this
is not considered to be a very good position for to be in. So now we have seen the impact of different planets on the first house in the ascendant. Remember, these traits will be on display when the planet is alone in the first house, that is, it is not conjuncting with any other planet nor any planet is aspecting them. If you have liked this video, please do subscribe to my channel and thank you for watching this video. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल प्रसाद जोशी एस्ट्रो यूनिवर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ लग्न की और हर एक ग्रह की जो कि प्रथम भाव में होता है, तो वृषभ लग्न पे क्या प्रभाव डालता है। देखिए, वृषभ लग्न जो है वो शुक्र का लग्न होता है, इसलिए आप देखेंगे कि ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत खुश रहते हैं। इनका प्रयत्न रहता है कि अपने जीवन को एंजॉय कर सकें, और शुक्र चूंकि लग्न स्वामी होता है तो इन व्यक्तियों का ध्यान या आकर्षण हमेशा लग्जरियस प्रोडक्ट्स पर ही रहता है। तो आप देखिए कि ऐसे लोग हमेशा ये सोचते हैं कि उनके पास एक आलीशान बंगला हो, घर हो, गाड़ी हो, और ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि अगर उनके बाकी ग्रह उनका साथ दें, इन लोगों को ऐसी चीजें मिल भी जाती हैं अपने जीवन में। ये लग्न बहुत अच्छा लग्न है पैदा होने के लिए, क्योंकि ऐसे लोगों को बाकी लग्नों के मुकाबले में कम समस्या आती है। अगर मंगल का लग्न है या शनि का लग्न है तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशानियां और दिक्कतें देता है जीवन में, क्योंकि उनका लग्न स्वामी ही जो है वो एक मेलिफिक प्लैनेट होता है। लेकिन शुक्र चूंकि एक सौम्य ग्रह है, तो वो व्यक्ति के जीवन को आसान बनाने में बहुत सहायता करता है, और ऐसे लोगों को वो काफी कंफर्टेबल जीवन मिलता है बाकी लोगों के मुकाबले में। इसलिए एक बहुत अच्छा लग्न है पैदा होने के लिए। काफी खुशमिजाज होते हैं और ये लोग दिखने में भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आप देखेंगे कि जो अपोजिट जेंडर के लोग हैं वो इनके प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि ये जैसे बात करते हैं, बहुत मिलनसार स्वभाव होता है, दोस्त भी बहुत जल्दी बना लेते हैं और दिखने में भी सुंदर होते हैं। तो ये काफी जल्दी अपना सोशल नेटवर्क भी बढ़ा लेते हैं। इनको जो है वो लग्जरी में रहने की आदत होती है, या ये लोग लग्जरी को ही पाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप देखिए कि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी पैसा भी कमा लेते हैं। और चूंकि ये खुश भी हमेशा रहते हैं, तो आप देखिए कि इनका जो मिडिल जो पोर्शन रहता है जीवन का, यानी कि 35-40 साल के बाद से लेके जो भी आगे का जीवन होता है, इसमें ये व्यक्ति काफी खुश रह पाते हैं। अभी जब हम एक एक ग्रह को देखते हैं कि वो प्रथम भाव में क्या प्रभाव देगा, तो हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि आपको ये परिणाम तभी मिलेंगे जब ग्रह प्रथम भाव में अकेला होगा, यानी ना तो वो किसी के साथ युति कर रहा होगा, ना उसको कोई और दूसरा ग्रह देख रहा होगा। देखिए, जब सूर्य यहाँ पर प्रथम भाव में बैठता है तो यह व्यक्ति को एक बहुत ही अट्रैक्टिव या मैजेस्टिक पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं वो देता है। आप देखिए, ऐसे आप लंबे चौड़े लोग देखेंगे जिनकी तरफ आप एकदम से देख के बोलेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति किसी बड़े पद पर होगा, या ये व्यक्ति की पर्सनालिटी बड़ी आकर्षित करने वाली है। तो ऐसे लोगों के प्रथम भाव में हमेशा सूर्य होता है। ये लोग आपको भीड़ से अलग दिखते हैं हमेशा। इनके साथ समस्या ये होती है कि चूंकि सूर्य यहाँ पर बैठ जाता है, तो इन लोगों को जो है वो सरदर्द की शिकायत रहती है, या इनको आंखों की समस्या भी होती है। चूंकि सूर्य यहाँ से 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को ही देखता है, तो इन लोगों के आप शादीशुदा जिंदगी में भी कुछ तरह की समस्या देखते हो। तो सूर्य का यहाँ पर बैठना मिक्स्ड रिजल्ट ही देता है, क्योंकि एक तरफ तो वो व्यक्ति को बहुत पॉपुलर बनाता है और लोग उसको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो आपको सेहत और रिलेशनशिप की समस्याएं भी देता ही है। जब यहाँ पर चंद्र बैठता है तो चंद्र यहाँ पर वृषभ राशि में उच्च का हो जाता है, तो ऐसे लोगों का जो थॉट प्रोसेस होता है वो बहुत अलग होता है नॉर्मल लोगों के मुकाबले में। चंद्र बैठता है तो सौम्य ग्रह बैठा हुआ है, तो व्यक्ति के जीवन को खुशहाल बनाने में और ज्यादा मदद करता है। यहाँ पर शुक्र का लग्न है जो कि सौम्य ग्रह है, और चंद्र भी सौम्य ग्रह ही है, तो व्यक्ति का जीवन को खुशहाल बनाने में बहुत मदद करता है। इन लोगों को अपने छोटे भाई बहनों से, पड़ोसियों से वगैरह भी काफी मदद मिलती रहती है जीवन में, जब भी जरूरत हो तब। आप देखिएगा कि इन लोगों को अपोजिट जेंडर के प्रति बहुत अट्रैक्शन रहता है, और ये लोग हमेशा जो है ऐसे अपोजिट जेंडर वाले को जो है मनाने का या पटाने का प्रयत्न करते रहेंगे। अगर उनको उसमें निराशा भी मिलती है तो भी वो लगे रहते हैं,
और जिसकी वजह से आप देखिए कि इनके अपोजिट जेंडर में बहुत से मित्र या फिर रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। इन व्यक्तियों के साथ समस्या ये होती है कि चूंकि चंद्र कफ का कारक होता है, तो यहाँ पे व्यक्ति को ना सिर्फ एक बड़ा चेहरा देता है, लेकिन उस व्यक्ति को कफ रिलेटेड समस्या भी होती है। तो ऐसे लोगों को सर्दी बहुत ज्यादा होती है। अगर यहाँ पर बुध बैठा हो तो ये व्यक्ति को बहुत ही क्लेवर बनाता है। ये व्यक्ति जो हैं वो नेगोशिएट करने में बहुत उस्ताद होते हैं। और अगर ऐसे कोई भी प्रोफेशन होते हैं जिसमें नेगोशिएशन लगता है, तो उस उन प्रोफेशंस में आप देखेंगे कि इन लोगों को बहुत सफलता मिलती है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये लोग बहुत ही अच्छे होते हैं फिजिकली, क्योंकि बुध यहाँ पे बैठा हुआ है, तो वो ऐसी फिजिकल स्ट्रेंथ तो व्यक्ति को देता नहीं है। शारीरिक तौर पर आप देखेंगे तो ये लोग थोड़े से कमजोर होते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी शुक्र लग्न में बुध होता है। तो जब प्रथम भाव में बैठ जाता है तो बहुत ही अच्छा पोजीशन है ये। और ये व्यक्ति को जो है वो बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर बनाता है। इन लोगों की स्पीच पे बहुत अच्छी कमांड होती है, तो जब भी ये लोग बोलते हैं तो इनके आसपास के लोग इनकी तरफ बहुत आकर्षित हो जाते हैं। कई बार हम ये भी सुनते हैं कि ये देखो ये बहुत अच्छा स्पीकर है। तो ये तभी होता है जब बुध कुंडली में मजबूत हो और यहाँ पे प्रथम भाव में बैठ के इनको बहुत अच्छी ये एक वाणी पर जो है वो कमांड देता है। अगर शुक्र यहाँ पर बैठा होगा प्रथम भाव में, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन कहलाती है, क्योंकि शुक्र जो है अपने ही भाव में बैठा हुआ है। तो यह व्यक्ति को जो है काफी ऊंचाइयों पर लेकर जाने में सक्षम होता है। या तो ऐसे लोग बहुत ही अमीर घर में ही पैदा होते हैं, या फिर इनकी दोस्ती ऐसे लोगों के साथ होती है जो बहुत उच्च पदों पर आसीन होते हैं, और उन लोगों की दोस्ती का फायदा इन लोगों को हमेशा मिलता रहता है। ऐसे लोग आप देखेंगे बहुत जो है वो कलाकार होते हैं, आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं। इनको पैसा जो है बहुत ज्यादा परिश्रम किए बिना भी जीवन में मिल जाता है, लेकिन इनका जो सोशल सर्कल होता है वो इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इन लोगों के इस स्थिति में उन लोगों से इनको मदद भी मिलती रहती है। अगर मंगल यहाँ पर बैठा हो तो ये बहुत अच्छी पोजीशन आप नहीं बोल सकते। हालांकि मंगल और शुक्र जो है आप इनको नेचुरल पार्टनर्स बोलते हैं, क्योंकि चाहे वो तुला लग्न हो या वृषभ लग्न हो, उनके सामने हमेशा मंगल की राशि आती है। तो जब सप्तम का स्वामी प्रथम भाव में बैठ जाता है तो आप देखिएगा कि इनके जीवन में जो इनका अपोजिट जेंडर होता है, चाहे वो पार्टनर हो या और कोई व्यक्ति हो, उसी व्यक्ति की घर में चलती है। ये हमेशा उसी व्यक्ति की बात मानते हैं। अभी मंगल यहाँ पे बैठ व्यक्ति को बहुत पैशनेट बनाता है, और ऐसे लोग दोस्तों के प्रति तो हमेशा जो हैं वो लॉयल रहते हैं, लेकिन आप ये चीज उनके पार्टनर के बारे में नहीं बोल सकते। मंगल यहाँ पे बैठ के इनको मल्टीपल पार्टनर्स भी देता है, और इनका भी जो अट्रैक्शन होता है अपोजिट जेंडर के प्रति वो बहुत जबरदस्त होता है। मंगल यहाँ पे बैठ के इनकी स्पीच को भी खराब करता है। तो इनकी वाणी बहुत उग्र होती है, जबकि अगर कोई सौम्य प्लैनेट यहाँ बैठा हो तो व्यक्ति बहुत ही आराम से बोलने वाला होता है, या उसकी वाणी बड़ी मधुर होती है। लेकिन मंगल यहाँ पे बहुत तीक्ष्ण बना देता है, व्यक्ति को बहुत अग्रेसिव बनाता है। इसलिए ये पोजीशन कुछ खास अच्छी नहीं कही जा सकती है। अगर यहाँ पर गुरु बैठता है तो देखिए गुरु तो शुक्र का शत्रु हो जाता है, और यहाँ पे वो 8वें और 11वें भाव का भी स्वामी है। तो ये पोजीशन में जब गुरु होता है तो व्यक्ति का सेहत को भी खराब करता है। यहाँ पे व्यक्ति को जो है वो कई बार आप देखिए कि इस तरह के लोग अगर और किसी पापी प्लैनेट का प्रभाव पड़ रहा हो प्रथम भाव पे, तो ऐसे लोग आप देखेंगे कि अनएथिकल होते हैं। वो ऐसी चीजें करने लगते हैं जिन्हें समाज में मान्यता नहीं मिलती है, और रिलेशनशिप्स में भी इन लोगों को कुछ खास ध्यान रहता नहीं है। तो लॉयल्टी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है ऐसे लोगों के लिए। अगर शनि यहाँ पर बैठा हो तो ये और भी बड़ी समस्या है, क्योंकि शनि और शुक्र वैसे तो बहुत अच्छे मित्र कहलाते हैं, लेकिन शनि शुक्र का जहां पर भी कॉम्बिनेशन हो जाता है तो व्यक्ति को बहुत रेकलेस बनाता है। यानी कि शुक्र यहाँ पे आदमी को मौज कराना चाहता है, और शनि अगर यहाँ बैठ जाए तो वो व्यक्ति को बिल्कुल आखिरी हद तक लेके चला जाता है। जैसे अगर मान लीजिए यह व्यक्ति कोई व्यसन पाल ले या जैसे शराब पीने लग जाए, तो अगर खाली शुक्र का प्रभाव हो तो भी वह व्यक्ति 2-3 ग्लासेस पे चुप हो जाएगा, लेकिन अगर शनि यहाँ बैठ जाए तो वो बोतले पे बोतले खाली करता चला जाएगा। तो
शुक्र जो है वो चाहता है कि आप जीवन एंजॉय करें, लेकिन शनि उनको बहुत ही एक्सट्रीम पे लेके चला जाता है। क्योंकि अगर आप देखिए तो शनि जो है वो डिसिप्लिन का कारक होता है। तो ऐसे लोगों में अगर शुक्र भी बहुत मजबूत हुआ कुंडली में और शनि की भी पोजीशन अच्छी हुई और किसी और एक जैसे गुरु का भी प्रभाव पड़ जाए, तो ऐसे लोगों के साथ दिक्कत आने लगती है, क्योंकि शुक्र उनको एक दिशा में खींचता है और शनि उनको दूसरी दिशा में खींचता है। तो ऐसे लोग बहुत असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं कि मैं करूं या ना करूं। लेकिन अगर गुरु का प्रभाव नहीं पड़ रहा हो दृष्टि से प्रथम भाव पे, तो फिर शुक्र शनि को अपने साथ बहा के ले जाता है और ऐसे लोगों को अपने व्यसनों पे कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल होती है। ये लोग अगर समाज में कोई प्रतिष्ठित पोजीशन पे पहुंच भी जाते हैं, तो वो भी इनके चाल चलन की वजह से इनके हाथों से निकल जाती है। ये मान सम्मान गवा बैठते हैं अगर शनि यहाँ पर बैठ जाए बिना किसी और शुभ प्रभाव के। अगर राहु प्रथम भाव में बैठ जाता है, तो राहु भी शुक्र का मित्र होता है। तो ऐसे लोग जो है अपनी बातें छुपा के रखते हैं बाकी लोगों से, ये कभी पूरी बात नहीं बताएंगे सामने वाले व्यक्ति को। और ऐसे लोग जो है अपना गोल पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, इनको बस अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है। देखिए राहु वैसे भी जो है वो एक छद्मी ग्रह है, या आप बोल लीजिए कि वो एक छिद्र बिंदु है। तो वो कैसे भी करके उस चीज को पाना चाहता है जिसपे कि उसका मन आ जाए। इसलिए ऐसे लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं जो चीज वो पाना चाहे उसके लिए। तो बाकी लोगों के लिए ये बड़ी समस्यादायक स्थिति बन जाती है। अगर केतु प्रथम भाव में बैठ जाता है, तो ये फिर से कुछ खास अच्छी पोजीशन नहीं कहलाती, क्योंकि केतु विरक्त करने वाला ग्रह है और शुक्र हर चीज पाने वाला ग्रह है। तो यहाँ पर भी आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो आपस में मेल नहीं खाती हैं। केतु जहां पर भी बैठता है वहां पे व्यक्ति को वहां से काटने का काम करता है, विरक्त करने का काम करता है, लेकिन शुक्र यहाँ पे चीजों को पाना चाहता है। तो ऐसे व्यक्तियों के भी साथ वही स्थिति होती है कि ये करना कुछ और चाहते हैं और कर कुछ और बैठते हैं। तो कुल मिला के ये भी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं कही जा सकती। तो ये हमारा एक संक्षिप्त विवरण था कि जब प्रथम भाव में वृषभ लग्न में ग्रह बैठते हैं तो किस तरह से व्यक्ति को परिणाम मिलता है। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिए कि ये आपको परिणाम सबसे ज्यादा तब मिलेंगे जब वो ग्रह अकेला बैठा हो, ना यूतो ना दृष्टो। अगर इनके साथ बाकी ग्रह मिल जाते हैं तो फिर आपको परिणाम अलग तरह से देखने को मिलते हैं। लेकिन आप कुल मिला के देखेंगे तो वृषभ लग्न एक बहुत ही अच्छा लग्न है व्यक्ति के लिए, क्योंकि यह व्यक्ति को हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है। और ऐसे व्यक्ति जीवन जीते हैं कंपेयर टू बाकी कुछ लग्नों के जहाँ पे काफी समस्याएं व्यक्तियों को आती हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।